Good morning, good afternoon and good evening wherever you are world over. आज की सुबह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है और अब सब लोगों का अभिनंदन करते हुए हम आज का कार्यक्रम संडे का मॉर्निंग का 9:30 का शुरू करते हैं। और आज के प्रोग्राम में basically as we are moving in the Upanishads, we have done 18 chapters of Srimad Bhagavad Gita, and from there we are now moving to Upanishads. So, ladies and gentlemen, in that particular journey, in that particular process, let's start our early morning with lots of pious feelings, because this particular web series is basically how to make education relevant. And when we are talking about making education relevant, it's very important for us to understand, because Saturday morning we discussed with you what is Buddha's philosophy as far as today's education system is concerned. And when we talk about Sunday morning 9:30 onwards, we all share what exactly is the innovative pedagogy and what are the andragogy and other areas which we have to take into considerations when we talk about this particular webinar series that's on Sunday morning, initially with Srimad Bhagavad Gita, and now coming to India's Upanishads. So, ladies and gentlemen, while extending a hearty welcome to each one of you, let me share a couple of slides with you, and from there we move on further and we take into considerations that what exactly are going to be the deliberations with regard to India's Upanishads. Now, let me just roll the slides so that you know what do we do the whole week. Our chamber, International Chamber for Service Industry, that is ICSI, which is the chamber for the global fraternity, particularly our non-resident Indians. When we talk about, they are the one with whom we have the linkages world over. When we talk about these linkages world over, ladies and gentlemen, we got to share what exactly we are talking about over here and how the non-resident Indians are taking the benefit of this. So, when we talk about this particular program and this particular series, it is very important for all of us to understand that all Indian Vedas and India's epics, when we talk about, they have got a direct relevance with all of us as far as the Indian education system is concerned and as far as the global fraternity is concerned. So all of us world over, wherever we are, let us get together and let's work out the strategy. What is the relevance of Srimad Bhagavad Gita, which we have covered, and India's Upanishads, when we talk about what is their relevance in today's education system. And when we talk about today's education system, ladies and gentlemen, there our chamber, ICSI, plays a very pivotal and a very important role, that how to link the non-resident Indians, those who have gone abroad, all of them, they got to be together with us, they got to be a part of it, and how we can proceed and what exactly can be done in this particular process, in this particular program. So people from world over joining us, when we take into considerations, we get lots of expertise, we get a lot of valuable inputs from everybody from the world over. So ladies and gentlemen, every Sunday morning we get Professor Satinder Dhiman from the Woodbury University, Burbank, California, who shares with us what is the significance of Srimad Bhagavad Gita and 10 to 11 important Upanishad, what we have got, what is their relevance as far as
our entire system is concerned. Now, I would request my technical team, please share the entire watch party, Facebook, and all other areas with Professor Satinder Dhiman Sahab, because he is finding it difficult uh, to log in. So I would request all the technical team people, please take care. Meanwhile, I'll just share the entire process. What are we doing? How are we working out? What are we planning over here? So during this lockdown, during this coronavirus, the thought processes are affected, business is affected, physical and mental health is affected, and the main part of the universe, that is education, is deeply affected. When we talk about education deeply affected, it is very important. Uh, we have to understand that what exactly is passing through the human mind, and what exactly has to be done to overcome this entire thought process. Okay, to bring positivity and of course to bring connectivity world over, it is very important for us to understand the technical team has to do their work very professionally, and they got to understand the things very well so that you can get everybody in timely. So during this particular process, when the education is deeply affected, we got to understand how to take care of youth, because they are of different age groups, they are at different places, they are in different countries, and all of them, when we have to take into consideration, it is very important, all of us, we have to understand that what exactly is happening, why children are unable to go to their respective schools, colleges, and institutions. And there is a digital divide world over. And particularly, let me share the technical know-how. When we talk about, most of us in education, we are not technically equipped, we are not technically savvy, and every time we are highly dependent on technical people, including me. When I talk about, I'm also dependent on my technical people. So I think the time has come where I got to understand that slowly and gradually some portion of technology I have to pick up, irrespective what is my age, what is my status, what is my designation, and where I am. You can't be dependent on your technical people all the time, because your technical expert can just send you a small WhatsApp, okay, sir, I'll be available after 10:20 a.m. So you're in a fix. You don't know what to do. So thereby, it is always good, as it happens, that timely actions, timely learning, relearning, upskilling, all that is very important for all the educators wherever we are. And that is applicable to me also, because I got to learn everything my way. Then only I can have a peace. Okay, let me share further and go on to, from India, we talk about Vasudev Kutumbakam, one world, one love, one family. Professor Sahib has been very kind to join us all the way from United States. So I'm not going to take much of time, and I'll just be flipping through these slides so that quickly I finish it and we get to today's main talk, main sermon, what we have to get. Monday to Sunday. Earlier this term was Monday to Friday. Now we talk Monday to Sunday. And we have made Sunday more busy, because Sunday has to be more productive. When you have little time, you got to do value addition to yourself, you got to do value addition to humanity. And those of us who are in education, we try and share as much as possible, whatever we can, with the entire global fraternity. If I share with all of you, those are joining on the Facebook this morning,
or those are joining us in the webinar, you must have got my messages from 4 a.m. in the morning onwards because you are in different time zones. To all my friends in Australia, New Zealand and Fiji, I sent across around 4 o'clock. Then I moved to Southeast Asia. Wherever we have got people, those understand this cultural and heritage values, I reach them because they are 3.5 hours ahead of us. As far as India is concerned, I started from 6:30 until 8:30, 2 hours I've been sending to all of you so that the information should reach everybody. So 4 o'clock to 8:30, 4.5 hours. And that too as a reminder to all of you that let's empower the entire humanity, the entire globe together. And if I share with you, there is no honorarium being taken by Professor Satyendra Dhiman Sahab. And it's a late evening in America. He joins us. He shares his thought process. How many days and how many nights and how many years he has come to different places in India and world over where he has gone and he sat in the feet of those monks and those saints and those Siddhipurush, all those people. And whatever he learned from there, he wants to pass it on to the humanity. Because, ladies and gentlemen, we all are not permanent over here. But yes, information is permanent over here. Today also we enjoy Mohammed Rafi, Mahendra Kapoor, Mukesh, everybody's song. And they sung in different moods, different lyrics and different musicians. They all have given so much to universe. And the voice which they left over here, and जो अपनी कलम से वो लिख के छोड़ गए, वो सब हम आज भी गुनगुना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. Similar way, I am a very true disciple and a student and a learner. I want to learn from each one of you, those join this particular program. Whether you join on Facebook or you join directly in the webinar, I'm the most humble student. I want to learn from all of you. And I always, every time that this program comes, I feel I do not know anything. I have not learned anything. I have not picked up anything. Because every time, life is full of challenges. Life is full of crises. Life is full of difficulties. Sometimes you have got technical glitches. Sometimes you have got some other difficulties. There's so much all around happening that you want to live peacefully. But something happens. And that basically takes your entire thought process into a different arena. Anyway, let's come. आइए शिक्षा को प्रासंगिक बनाएं, मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट, और शिक्षा के साथ साथ जीवन संचालन की कौशलता क्या है. एंड व्हेनेवर आई लर्न फ्रॉम प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब, जीने के लिए पढ़ना है या जीवन के लिए पढ़ना है, कि just to acquire some skills for living, or is it a life skills what we have to learn? From our chamber, we learned that the next crisis world over is going to be on water. So jal hi jeevan hai, jal sanrakshan zaruri hai. That's why we started this particular series on 5th of June on the World Environment Day. On Saturday morning, we talk about Lord Buddha's teachings in today's education. And every time we get so much of learning, because I never knew 500 million plus people world over, they are the followers. And International Buddhist Confederation, Venerable Dr. Dhammapiya ji. And it was another treasure and pleasure and such a soothing for me when I learned our immediate past president, Professor Satyendra Dhiman Sahab, and now the patron. He has done his second PhD in Buddhism. It was a great learning for me. There's so much to pick up and so much to learn. What was the necessity for him to do his second PhD? He had already taken the PhD. But well, when you want, जब उन्होंने कहा विद्या से अध्यात्म की और जो ये जर्नी है, ये जर्नी क्या है? We will pick up in that. Saturday evening, we come for Ayurveda for Global Wellness. What a mind-blowing speakers yesterday we had. You can go on the YouTube channel of Dr. Gulshan Sharma. Do watch yesterday's wellness strategies, and particularly Dr. Ajit, who is 65-year-old from Goa. And what
what input she gave yesterday, it was, my God, mind-blowing for all of us. In Ayurveda, in wellness, what exactly is needed, what are we having in schools, colleges, universities, institutions, what are we teaching, and what exactly this body requires. It was so much to learn yesterday. After this morning pious program, which we hold in the morning, early morning on Sunday, we will be going to Northeast in totality, Northeast India and ASEAN in the evening at 5 p.m. today. 7 p.m., because a lot of challenges are there at present to the youth and to the people, those are already in the job, in the micro, small, and the medium enterprise. So we will be taking care of that. And today at 7 p.m., you'll be having the CMD from the NSIC, who just finished his tenure, and that is the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprise. He'll be with us. Our chamber from morning till evening, every day, Monday to Sunday, we are on with everybody. And I'm so grateful, right from Central Asia, Middle East, Mongolia, all the places where the people are joining us from. This is the research which our chamber has carried out right from 25th of March. Basic food is the necessity. Basic health, your wellness is very important. And education will have altogether a new norms in the coming times. And B2B will be no more business to business. It's back to basics, what we have to understand. And ladies and gentlemen, जब तक ये मस्तिष्क की गरारियां चल रही हैं, whatever human mind can conceive and believe, they can achieve. Let's come together for making education relevant. It's a global confluence of educators, motivators, technocrats, counselors, wellness experts, corporate and government administrators and decision makers, because the new education policy in India has come. Our deepest regards and heartiest congratulations to Honorable Prime Minister of India, Education Minister of India, what was known as Minister for HRD earlier, and his entire team. They have done a wonderful job. And as every stakeholder, and Professor Dhiman Sahab also, before this education policy was announced, he told India needs a thorough research work. That has been given a lot of emphasis. And second part he gave, the teachers have to be emphasized. Teacher education, teacher empowerment is very important. So that is also being taken care of in this. So ladies and gentlemen, it's indeed a very privileged moment for me in particular and for all of us, that this morning, right from the California, United States, Burbank, Woodbury University, we have got Professor Satyendra K. Dhiman Sahab, and he is a very distinguished scholar. He's a gold medalist from Punjab University, and he was teaching in India. He went on a Rotary scholarship, and after reaching over there, what a commendable work this man has done in different continents. He's recognized as a lead thinker for his pioneer contribution to the field of holistic leadership, workplace spirituality and well-being, and sustainability. Professor Dhiman Sahab is a sought-after keynote speaker at regional, national, and international conferences. In 2013, he was invited to be the opening speaker at the prestigious TEDx conference in California. Professor Dhiman has won several prominent awards in teaching, scholarship, and services, including the prestigious ACBSP International Teacher of the Year Award, where he was selected as the winner from among 500 member universities in the USA. This international award is the highest possible honor that can be bestowed upon a business faculty in a given year. What a pleasure to have him every Sunday with us. Educated at 3 different continents, Professor Dhiman holds a PhD in social sciences from Tilburg University, Netherlands, a doctorate in organizational leadership from Pepperdine University, Los Angeles, an MBA from the West Coast University, Los Angeles, and a master's degree in commerce from Punjab University, Chandigarh, where he earned the gold medal. He has also completed advanced executive leadership program at Howard, Stanford, and Wharton, which are the 3 main pillars of education as far as the United States is concerned. Professor Dhiman came, or rather he had gone to the USA as a Rotary International Scholar in the year 1988, and after having taught at the prestigious DAV College Jalandhar in the
Punjab, in India for 10 years. He is author, translator, editor, co-author, and many other prestigious works which he has done. Over 35 management, leadership, spirituality, sustainability books and research monographs. He has also translated several Indian spiritual classics into English, including the Sahaj Gita and Krantikari Santvani. Ladies and gentlemen, at this age, in a very humble way, I accept and I admit that for the first time, I knew only Srimad Bhagavad Gita, but I never knew that there is a Sahaj Gita, there is a Anu Gita, and there are so many other versions of Gita. And now, I would say, every Sunday, there is so much to pick up and so much to learn and so much to assimilate and so much to transform yourself. And he has served as accreditation consultant, evaluator, and site visit team leader for the Accreditation Council for Business Schools and programs for more than 20 universities in America, Canada, Europe, and Asia. And in India also, when he comes, he tries to help as many institutions in a right way, pragmatic way, professional way. Professor Dhiman is the founder director of Forever Fulfilled, a Los Angeles-based well-being consultancy that focuses on workplace wellness, workplace spirituality, and self-leadership. He has served as the president of our ICSI, International Chamber for Service Industry, and we are grateful to him that he accepted to be, after his presidentship, to be the patron, which was highly acclaimed by our governing body. This is the timeline workbooks which Professor Satyendra Dhiman has authored. I would say there's so much to learn from this soul and this spirit and this person. So much he has contributed to the humanity. And when I talk about 7 habits of highly fulfilled people, Srimad Bhagavad Gita, Mahatma Gandhi ji, and a couple of other things, what all he has been doing over here. Some of his fellow friends, those are his Hum Zulf, Hum Nawaz, and Hamraz. When I talk to them, they say that he was the youngest author of bringing a textbook on accountancy when he was pretty young and when he was teaching at Jalandhar. Now, ladies and gentlemen, right over here, this series celebrates and presents the best of whatsoever is given on Sanatan Dharma. He would be discussing with you all the Upanishad, and layer after layer, ladies and gentlemen, we will keep moving ahead with the time. And as a humble person, I would like to learn as much it is possible every Sunday morning. Some useful links to explore Srimad Bhagavad Gita, published by Gita Press, Gorakhpur, Sanskrit to English. So all of us, because these videos, what we are recording, it's available on the Facebook also. But after this program, we put them onto the YouTube channel also. All the videos of Professor Dhiman Saab and all the webinars what we have done till date, whether during lockdown or before, whenever he was coming to India, I was requesting him, I want to interview you, I want to have interaction with you, I want to empower education, I'm interested how to make education relevant. Only 3 buzzwords in my mind comes always: making education relevant. I always talk from that point of view. So today also, when he shares his vision with us, we are going to talk everything related to, this is the Sahaj Gita, English translation of Sahaj Gita by him, which is available online. It's a free to download with following links, and you can just go through. It's available. You can see. It will be available on the YouTube also. Tomorrow morning, 9 o'clock, you can have a look at it. And the entire videos which we recorded earlier on the YouTube and today's also, you will be able to get. So ladies and gentlemen, I come to the climax of, as far as my submission, my humble efforts, very humble baby steps. That is how to make education relevant. And I'm not talking about only Indian education system alone, but I'm talking about the confluence of, and where basically the entire humanity, all of us together,
with the different stakeholders, different experts, and different pious souls. They come together and they share their vision with all of us. The ideal of education should be to remove ignorance and to provide the desired knowledge and competencies for global peace. So, ladies and gentlemen, with these words, I remove the curtains and with the folding hands, I extend a very hearty welcome, very warm welcome this morning to Professor Satyendra Dhiman Sahab. My sincere apologies for being late and technical glitches. I think I got to educate myself more on technical side. I will make sure I learn more, I pick up more, and I equip myself more. And next Sunday, 9:25, I should be there so that we can start timely. Today's delay, ladies and gentlemen, I am the sinner and I got to be punished on that. So, well, I accept any punishment whatsoever you give it to me. I take it in a very humble way as a humble student. So, with these words, hearty welcome to you. Pleasure to have you with us. Thanks for joining on Sunday morning. And let's make this morning very pious and further spread your fragrance, your knowledge, your vision, and your wisdom with all of us. With these words, Professor Satyendra Dhiman Sahab, live from Woodbury University, Burbank, California. वासुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्. Today, because there is this celebration of Ganesh Chaturthi, let me remember Lord Ganesha. उनका आवाहन कर लें, वो विघ्नहर्ता हैं. Sharma ji, I need to apologize because the problem was on my end. The links that you are sending, they were going to my spam folder. So it is not your fault. The fault was on my end, and for which I sincerely apologize to all the viewers for being a little late today. So let's do Lord Ganesha's Avahan. Om. The beauty of this mantra is that Lord Ganesha is Vignharta. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samprabha Nirvignam Karume Deva Sarvakareshu Sarvada. O Lord Ganesha, remove all the obstacles from our way, in all possible ways. Nirvignam Karume Deva Sarvakareshu Sarvada. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namah. The only purpose of these webinars is just one, and that is to know ourselves. Atma Gyan. There is no other purpose. I personally do not belong to any dal or any संप्रदाय, क्योंकि जितने भी दल हैं वो सब दलदल ही हैं. तो हमारा मकसद किसी दल को बिलोंग करने का नहीं है. चाहे कोई भी दल हो, वो दलदल ही होता है. The only purpose here is to share some pointers regarding how to cognize, how to realize our highest self. There is no other purpose. Absolutely no other purpose. The purpose is not to in any way declare oneself as important or to establish oneself as a teacher. I have said it many times. I will say it again today.
I regard myself as a seeker, as a sadhak only, not as a teacher. Seeker, not as a teacher. Last time when we met, I shared with you one or two very important points. I am going to mention them for reference and then proceed further. Every class is going to become more serious. More serious in the sense because the principle is compound interest, meaning every time there is an interest on interest. So learning happens through compound interest process. So if you have been attending these webinars and you have been taking some good mental notes, which I hope you are, then the process will be, in a way, just a matter of saying it, cumulative. And if you listen with a clear mind, with a silent mind, then some deepest doubts may be cleared right here, right now. So last time I said that the most important thing for a student, for a seeker, is to take a correct standpoint, take a correct perspective. Because you see, Bhagavad Gita is Bhagavad Gita. It is a Gita song celestial, sung by Krishna, Lord Shri Krishna. Bhagavad Gita में, as I pointed out, कहीं भी श्री कृष्ण वाच नहीं है, भगवानु वाच है. That is, Lord Krishna has spoken from the standpoint of the highest self, the supreme Purushottama, highest self, Shri Bhagavan, Shri Bhagavanu Vach. Very beautiful, point to be noted. So, in order to understand Bhagavad Gita and Upanishads, we have to take a stand, we have to assume a standpoint for the time being of the same level, at least intellectually, from which those rishis and Lord Krishna has spoken about Srimad Bhagavad Gita. Without that, we will not be able to understand. हमें शास्त्र दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी. अब हमारी संसार दृष्टि है. That is very good for व्यवहार, for transacting in the world. That is very important. अध्यात्म विद्या हमें ये नहीं सिखाती कि अपनी विद्या में छू कर जाओ. ये सीरीज विद्या से अध्यात्म विद्या तक है. पहले विद्या पर आपको थोड़ा सा अधिकार, मीनिंग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी. फिर ये विद्या से चूकने वालों को अध्यात्म विद्या नहीं मिलती. ऐसा कोई नियम है कि अगर आपने अगली पौड़ी पर चढ़ना है, इफ यू वांट टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेप, पिछले स्टेप से आपने आपको उठाना पड़ेगा आगे. सो दिस इज अ विद्या विच गोज बियॉन्ड द विद्या विच इज गुड फॉर. अब द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज दैट we devote so much time in accumulating all the information, all the knowledge, और उसका कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है. We devote all our life in attaining There's some internet connectivity problem, sir. There is some internet connectivity problem. Finally, Atva na nivritante tad dham paramam mama. Lord Krishna says, वहां गया वापस नहीं आता. यत गतवा ना निवृतन्ते तद धाम परमम ममा. हालांकि उन्होंने आगे कहा कि ताते भुक्तवा सर्वलोक विशाल, कि बहुत विशाल सर्वलोक है, उसको भुक्त कर भी, वो तो होटल में रहने वाली बात है. क्रेडिट कार्ड बैलेंस खत्म हुआ, वो कहेंगे हजूर घर जाइए. तो लॉर्ड कृष्णा सेज
जिनको दी थी भगवत गीता में, शास्त्र दृष्टि। तो शास्त्र दृष्टि क्या है और संसार दृष्टि क्या है? देयर आर 3 ways we can look at life. One, I am this body. वो है देह दृष्टि। इस देह दृष्टि से 90% ह्यूमैनिटी जी रही है। वो कहते हैं द लाइफ व्हेन वी आर बोर्न इज द बिगिनिंग एंड व्हेन वी डाई इट इज द एंड। हमारे भी 4 वाक जी हुए हैं दर्शन शास्त्र में, उन्होंने भी बड़ा कुछ लिखा है। उनका भी मत यही था कि बर्थ इज द बिगिनिंग, डेथ इज द एंड। ये एक दृष्टि है, देह दृष्टि। अगर आपको, इफ यू आर हैप्पी बाय हैविंग दिस थॉट प्रोसेस, तो वी कंग्रेचुलेट यू। भगवत गीता और उपनिषद आपके लिए आपको कुछ ऐड नहीं करेंगे, आप तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मगर अगर आपको जो आपको प्राप्त है, मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में पुनरावृत्ति अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड होती है। हमारे टीचर्स ने हमें कहा कि किसी और सब्जेक्ट में रेपिटेशन, जब आप किताब लिखते हैं रेपिटेशन ना कीजिए, वहां पर वो काबिल माफी नहीं है। मगर जब आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस पर जस्ट टू रीइटरेट, टू ड्राइव होम द पॉइंट, तो पहले भी ये कहा था कि जो भी हमने इकट्ठा किया है, तो अगर आपको whatever you have achieved in life, चाहे वो अचीव्ड हो, चाहे आपका एक प्रॉपर लेवल हो लाइफ का, मान लीजिए यू आर यंग, तो कोई भी चीज, कोई भी अवस्था हमें जो प्राप्त होती है, अगर आपको उसके खो जाने का भय नहीं है, इफ यू हैव अचीव्ड ए सर्टेन पोजीशन इन लाइफ, आप कोई बन गए, नेता बन गए, अभिनेता बन गए, या आप प्रिंसिपल बन गए और प्रेसिडेंट बन गए, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बन गए, जो भी बन गए, फिल इन द ब्लैंक, इफ यू हैव नो फियर दैट यू विल लूज दैट वन डे, कल को पता नहीं क्या हो जाए, साजिश ही ना कोई कर दे हैं? आजकल तो सोशल मीडिया है, वो किसी को, समटाइम आई फील शर्मा जी दैट हमारे वो जो युग होते थे ना, युग, वो कहते हैं जी सत्य युग है, फिर द्वापर है, फिर वो त्रेता है, और फिर कल युग है। एक और युग है, आप आज एक नई चीज आपको बताते हैं, 5वां युग भी है, उसे कहते हैं फेक न्यूज युग। आज के युग में जहां हम रह रहे हैं, वो फेक न्यूज का युग है। और इतिहास में बाद के लोग आज से 100 साल 200 साल बाद जो हैं, वो कहेंगे भाई कलयुग के बाद तो उस और क्या हो सकता था, हम सोचते थे आफ्टर कलयुग इट शुड बी द एंड। नहीं, देयर इज ए फेक न्यूज युग which in which we are living, we are vibrant in that. So the beauty of life is that अगर आपको, if you have attained a position, you have attained something in life and you're not afraid to lose it, and you are not anxious about future, ये चीजें हमने स्वामी शरणानंद जी महाराज से सीखी जब हमें उनकी किताबें ट्रांसलेट करने का थोड़ा सा मौका मिला संतों की कृपा से। तो ये बात हमने उनसे सीखी कि अगर कोई व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंच जाए कि उसे प्राप्त वस्तु के खो जाने का भय नहीं है, और जो अप्राप्त है उसकी चिंता नहीं है, उसके लिए अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को कंग्रेचुलेट कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, एंड यू नो वी कंग्रेचुलेट यू एंड वी आर सो हैप्पी फॉर यू। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपको अखड़ती है, तो भगवत गीता और उपनिषद आपके लिए हैं। तो मैं आज फिर ये रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं है, ये संतों की सिद्ध वाणी है। वो एक स्वामी शरणानंद जी महाराज संत शिरोमणि एक सिद्ध महापुरुष थे। ऐसे लोग बार बार भगवान पैदा नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि 400-500 साल तक काफी है इन लोगों की जो बातें हैं। कारक पुरुष थे वो। तो उन्होंने और बड़ा कुछ कहा। उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि काम आ जाओ, कुछ ना चाहो। बस यही मंत्र है, कुछ बनना बनाना नहीं है यहाँ पर। हमारा तो ये है कि आशियां ही गुलिस्तां में नहीं, आशियां ही
गुलिस्तान में नहीं, अब खिजा आए के बहार आए। अब क्या फर्क पड़ता है कि पतझड़ आए या बहार आए, हमारा तो आशियाना ही बाहर है, बाग के बाहर बनाया हुआ घर हमने। मौत ने आसरा दिया भी तो कब, जब मुसीबत के दिन गुजार आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहर है उर्दू की गजल की, और इसमें फैज अहमद फैज साहब ने भी अपनी कलम आजमाई की है, और उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो कहकर हम बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। शायरी का तो कोई अंत ही नहीं है। फैज साहब लिखते हैं, ये उनका हासिले जिंदगी शेर है, हासिले गजल शेर नहीं है, उसकी सारी जिंदगी का उनका हासिल है ये शेर जो आपको सुना रहे हैं इसी बहर में, कि आशियां ही गुलिस्तान में नहीं, अब खिजा आए के बहार आए, मौत ने आसरा दिया भी तो कब, जब मुसीबत के दिन गुजार आए। और फैज साहब लिखते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एक अंदाज था, और ऐसे उन्होंने बहुत कम शेर, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। ये है उनका अंदाज, ये है उनका अंदाज कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। तो ये जो अंदाज है इन लोगों का, कि अगर तो आपको ये वो हासिल हो गई है, वो आपको अभय पद प्राप्त हो गया है, संत कहते हैं अभय प्रद प्राप्त हो गया है। चलो खैर, मान लिया कि आप पर भगवान बहुत दयावान है और कृपा आप पर पूरी हुई है, ये दोनों चीजें आपने सिद्ध कर ली हैं। जो आपके पास है उसका आपको भय नहीं है, और जो मिला नहीं है उसकी चिंता नहीं है, मान लिया, वो भी दे देते हैं। तीसरी बात, मौत का भय सबको रहता है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। और कबीर साहब ने पिछली बार ये उनकी एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर की थी, वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, कहे कबीर सुन रहे लोई, है नहीं मरना, रोए ना कोई। तो ऐसा भी कोई पद है, ऐसा भी कोई ज्ञान है जिसको पाकर भगवान कृष्ण कहते हैं, यत ज्ञातवा अमृतम अश्नुते, जिसे जानकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो एक दृष्टि तो है देह, मैं पैदा हुआ हूं, फिर मैं कौमार्य से यौवन, यौवन से जरावस्था, और जरावस्था के बाद मेरी मौत हो जाएगी, ये एक देह दृष्टि। दूसरी दृष्टि है जीव दृष्टि। जीव दृष्टि ये है, जैसे कि 9 out of 10 वर्ल्ड रिलीजन्स बिलीव कि आप पहले यहां हैं, फिर आप कहीं और चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, वो सोचते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, आज हमारा मकसद उसकी बात करने का नहीं है। जैसे एक शायर ने कहा है, तू खिला है तो इसी धूल में मिलना है तुझे। शरीर के बारे में कहा है, तू खिला है तो इसी धूल में मिलना है तुझे, वो तो खुशबू है, उसे अगले नगर जाना है। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। तो ये उसका अंदाज है कि तू खिला है तो किसी धूल में मिलना है तुझे, इसी धूल में मिलना है तुझे, वो तो खुशबू है, उसे अगले शहर जाना है। तो ये जो अगला शहर है, ये भी एक अंदाज है कि वो अगला शहर स्वर्ग हो सकता है, नर्क हो सकता है, आपका बही खाता खुलेगा। ये दूसरी दृष्टि है। एक तीसरी दृष्टि है जिसके बारे में ये वेबिनार्स हैं। वो दृष्टि ये है कि ये जो आना जाना है, जन्मना मरना है, ये शरीर के और जीव के धर्म है। ये सिर्फ शरीर और जीव के धर्म है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये आत्मा की दृष्टि है। क्योंकि आत्मा जो है ना, देखिए, एक बार पहले भी जिक्र हुआ था, इमेजिन ए कप थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ। तो कप अगर अपने आप को कप मान के सोचता है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बीइंग ए कप, इट थिंक्स दैट one day I was created, someday I was created, and one day I will break. तो मेरा जन्म और मृत्यु हुई। तो ये है कप दृष्टि ये है कप दृष्टि। तो एक कप के अंदर का जो स्पेस है, वो कप कहता है मेरा है, सारी जिंदगी इसी पर लगी हुई है, मैं मेरी की जेवड़ी, गल बंधे हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। जिन्होंने प्रभु को आधार कर लिया है,
वो क्यों बंधे? बाकी दुनिया जो है वो मैं मेरी की, तो कप जो है उसके अंदर के स्पेस को अपना मान रहा है। ये है जीव दृष्टि। तो भाई जब कप अपने स्पेस को अंदर को मानेगा तो फिर उसके बड़ा कप भी नजर आएगा उसको कोई। देयर विल ऑलवेज बी समबडी मोर स्लिमर, मोर वेल्थियर, मोर ब्यूटीफुल देन यू, more intelligent, more smarter, more slimmer, more beautiful, at the fill in the blank. There will always be somebody who is better than you. तो ये तो अंत ही नहीं है, फिर तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो जो कप है वो हमेशा कंपेयर करता है अपने आप को। कभी बड़ा कप उसके सामने आ जाए तो वो अपने आप को छोटा फील करेगा, और अगर छोटा कप, खुदा ना खास्ता कोई छोटा कप उसके पास आ जाए तो फिर वो अपनी डींगे हिटने, डींगे बतानी, बड़ी बड़ी अपनी शेख चिली की बातें करनी बंद नहीं करेगा। मगर ये संसार की प्रॉब्लम ही यही है कि आप कभी कंपैरिजन से बाहर नहीं आ सकते। कभी कभी पास्ट का कंपैरिजन है, कभी फ्यूचर की चिंता है, और प्रेजेंट में हम दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए कप को एक और दृष्टि, एक उसकी कप दृष्टि है, एक उसकी दृष्टि है कि मैं, ये जो अंदर मेरे स्पेस है वो मेरा है और मैंने इसको बिल्कुल बचा के रखना है। प्लीज डोंट कम क्लोज टू मी। हमारे यहाँ अमेरिका में बड़े लोग हैं, आप किसी के थोड़ा पास, आजकल तो कोरोना ने 6 फीट डिस्टेंस कर दिया, थैंक गॉड। मगर देयर वाज ए टाइम कि इफ यू आर समबडी सिटिंग इन एन ऑफिस और आप उसके खुदा ना खास्ता थोड़ा सा नजदीक आ गए तो वो कहेंगे यू आर इन्वेडिंग माई स्पेस। वाह, वी आप अपने साथ लेकर आए थे ये स्पेस और साथ लेके जाएंगे। जिस थाने दा तू मान करेसी तेरे नाल ना जासी थाना। बुले शाह कहते ने कि जिहड़ियां चीजां दा तू मान कर रहे हैं ये तेरे नाल नहीं जाणगियां। तो ये एक स्पेस की दृष्टि है। कप की सीमितता को अपना मान लिया है, मैं मान लिया है। इस शरीर में देह बुद्धि हो गई कि मैं ये हूं और ये मेरे हैं। यही अर्जुन की प्रॉब्लम थी कि मैं अर्जुन हूं, पांडव हूं, और ये कौरव है, मेरे भाई हैं, और मेरे ये दादा हैं, दादा समान हैं, और मेरा टीचर है, मैं इनसे कैसे लड़ूं। तो वो बुद्धि जो है वही बुद्धि है उसके कप वाली, अंदर का सीमित स्पेस है। भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं। अब देखिए एक और कप उस कप के पास आता है, उसे गुरु कप कहते हैं। वो भगवान कृष्ण वाला कप है, बड़ा बड़ा प्यारा कप है। वो उस कप को आगे ये कहता है, मेरे दोस्त तू बड़ा चिंतित लग रहा है, यू लुक वेरी सैड, व्हाट हैपेंड? कोई रियासत खो गई है? कहता नो, द प्रॉब्लम इज कि मैं टूट जाऊंगा, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, आई एम वेरी अफ्रेड। मौत का जब एक दिन मुय्यन है, गालिब कहते हैं मौत का जब एक दिन मुय्यन है, जब मौत का एक दिन डिसाइडेड है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? फिर कहता मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती जब पता है मुझे मरने का दिन तो फिक्स्ड है, व्हाई आई एम स्टिल वरीड? दैट इज द क्वेश्चन। तो एक दृष्टि ये है, कप को ये बता दिया जाए कि मेरे दोस्त, द स्पेस विद इन यू एंड द स्पेस आउटसाइड यू आर वन अनडिवाइडेड होल, WHOLE। उसमें कोई फर्क ही नहीं है। बस ये दृष्टि देती है हमें भगवत गीता, और कुछ नहीं देती। आपको अमीर नहीं बनाएगी, सिर्फ आपके मानसिक गरीबी को दूर कर देगी। Only your mental poverty, impoverishment will be removed. That's all. Nothing more, nothing less. ये आपको अगर if you have come to these webinars कि आपको हम कोई चमत्कार करके बताएंगे, वो चमत्कारी लोग कुछ और होते हैं, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा तो यही है, हमने गुरुओं से यही चमत्कार सीखा है कि किसी चमत्कार की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी वैसे ही बड़ी खूबसूरत है। चमत्कार की तो उनको जरूरत है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कोई कोई, दूसरे अध्याय में शुरू में कह दिया उसको, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत इस आत्मा की बात को सुनता है, देखता है, कोई आश्चर्यवत इसकी बात को सुनाता है। लोग आश्चर्यवत बता रहे हैं क्योंकि ये बात ही बड़ी आश्चर्य की। कप को आत्मदृष्टि मिल गई, बड़ी आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? कप मुक्त हो गया, कप अपने कप पने से मुक्त हो गया। Now the cup used to think, I'm a cup only, I'm going to break one day, that is gone. The cup used to think that I'm limited space, and because of that वो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था। जिंदगी में सारी प्रॉब्लम ही ये है, यही प्रॉब्लम है। ये सिर्फ
अध्यात्म की प्रॉब्लम नहीं, अध्यात्म में भी है। लोग अध्यात्म में आकर भी बड़े बाबा बनना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर आप किसी को कहें ये सबसे बड़ी खाई है पैसे और दूसरी चीजों की खाई तो है ही है। हमें संतों से सुनने का मौका मिला कि इन खाइयों को पार किया जा सकता है। स्त्री पुरुष की एक खाई है, फिर पहले तो पैसे की है, फिर कंचन कामनी की, उसके बाद की खाइयां शुरू होती हैं, सही जो खाई है। और सबसे बड़ी खाई है कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। चलो ये भी आपने पूरी कर ली, आपने कंचन कामनी को भी छोड़ दिया और आपने ये खाई मान सम्मान की भी छोड़ दी। फिर आप ये चाहेंगे कि लोग आपके पास आकर कहें कि हजूर आप एक संत हैं, आप जैसा कोई और संत ही नहीं। वाह, आप कहेंगे कमाल हो गई। तो तो इन सारी चीजों से आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो चूक हो जाएगी। देखिए, संसार में फिसलेंगे तो शायद अध्यात्म में जाकर उसका रेजोल्यूशन हो जाए, मगर अध्यात्म अल्टीमेट गेम है। वहां अगर पैर फिसल गया तो उसका कोई काबिल माफी गुनाह नहीं है। फिर और कहां जाएंगे इसलिए बड़ा फूंक मार मार कर श्रुत धारा कवियो वदंती, इसको कहा है कि ये खंडे की धार है। ऐसे समझदार लोग कवियो वदंती, कवि इसके बारे में ये बात करते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं दिस इज इट्स लाइक ए रेजर्स एज, शार्प, वॉकिंग ऑन ए रेजर्स एज, डगमगाए तो कट मरे, निश्चल उतरे पार। कबीर साहब कहते हैं ये खंडे की धार है, साधु कहाना कठिन है ज्यों खंडे की धार। कबीर साहब ने दूध का दूध पानी का पानी किया हुआ सबके लिए। साधु कहाना कठिन है, बहुत मुश्किल है काम, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। ये नहीं है कहीं और काम नहीं बना तो धर्म के ठेकेदार बन गए, ये वो चक्कर नहीं है। इसलिए हमने कहा हम किसी दल को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ी दलदल है ये, मजहब जो है बहुत बड़ी फांसी है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है, भगवत गीता और उपनिषदों के जरिए, संत वाणी के जरिए एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करना, आत्मदृष्टि प्राप्त करना, जिसके प्राप्त करने के बाद यत ज्ञातवा ना पुनर्मोहम, उसके बाद दोबारा मोह नहीं होता, हो ही नहीं सकता, फिसल नहीं सकता आदमी। एक ऐसी निष्ठा आ जाएगी आपको, क्योंकि देखिए ज्ञान वो है जिसमें संशय ना कोई हो, डाउट ना कोई हो। डाउटफुल नॉलेज इज नो नॉलेज, इट इज एज बैड एज इग्नोरेंस। तो ज्ञान की लेवल्स हैं। एक लेवल है ज्ञान का जिसे आप कहते हैं जी हमने सुना था, वो सुनी सुनाई बात हो गई, चलो अच्छी बात है, ना सुनने से अच्छा है सुना, आपने सुन लिया। एक था कि आपने पढ़ा था किताब में, आग जो है वो आपने किताब में आग की पिक्चर, यू सॉ ए पिक्चर ऑफ फायर इन द बुक, वो भी अच्छा बात है। फिर आपने ये कहा ओके दैट इज वन टाइप ऑफ नॉलेज ऑफ फायर, देन आई सॉ देयर वाज ए स्मोक एंड वेयर देयर इज अ स्मोक देयर मस्ट बी ए फायर, अनुमान लगा लिया आपने, वो भी एक लेवल है नॉलेज का। फिर आपने कहा कि आई सॉ ए हाउस ऑन फायर, मैंने आग जलती देखी, एक वो भी नॉलेज है। अब पहले तो आपने सुना था, फिर आपने पढ़ा, देखा आग को, पिक्चर देख ली उसकी, फिर आपने देखा कि आग लगी हुई थी, फिर खुदा ना खास्ता आपका हाथ जल गया खाना बनाते बनाते, वो भी आग का नॉलेज है, डिफरेंट नॉलेज है उसका। वो जो आग का नॉलेज है, अनुभव सिद्ध नॉलेज है, वो कुछ और है। उसको प्राप्त करके उसको फिर पुनर्मोह नहीं होता। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने क्लियर कर दिया था। जब प्रकरण को निरूपण किया स्थित प्रज्ञ के को, उन्होंने कहता एशाम ब्रह्म स्थिति पार्थ प्राप्त ना विमोहित, उसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। और फिर अंत काले चपी, उसमें स्थित होकर अंत काले चपी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, इस स्थिति को प्राप्त नैनम प्राप्य विमोहिता, उसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता प्राणी। ये दूसरे अध्याय का जब कंक्लूड किया प्रभु ने, तो ये अर्जुन को आश्वासन दिया कि ये ब्रह्म स्थिति है, ये शाम ब्रह्म स्थिति पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र, ये ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है। नैनम प्राप्ति विमोहिता, इससे प्राप्त होकर विमोहित नहीं होता व्यक्ति। और फिर इसमें स्थित हुआ अंत काले चपी ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, अंत काल में भी इसमें स्थित हुआ ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द भगवत में
6 बार आया है भगवत गीता में, मगर इसका मतलब बुद्धिस्ट निर्वाण नहीं है, वो कुछ और है, वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और काफी लोग इस पर बहस करते हैं, मगर इसका काफी अनुसंधान किया है स्कॉलर्स ने और बड़ी क्लियर बात की है उन्होंने। भगवत गीता में जहां भी निर्वाण शब्द आया है ब्रह्म निर्वाण के साथ आया है, ब्रह्म को प्राप्त करने से जो मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, उसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। नॉट इन द सेंस ऑफ बुद्धिज्म वेयर निर्वाणा मीनिंग एक्सटिंग्विशिंग द फायर, वो जिसकी जैसे आप मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देते हैं, वो वहां निर्वाण है वहां पर, मगर यहाँ कुछ और शब्द का मीनिंग है। यत ज्ञातवा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यत ज्ञातवा न पुनर्मोहम, यत ज्ञातवा मोक्षस्य अशुभात्, यत ज्ञातवा अमृतम शुनुते। हर जगह पर भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि एक जगह तो ये कह दिया, आज इच्छा ये थी कि भगवत गीता के 3 श्लोक और कठोपनिषद की बात की जाएगी, और अगले वेबिनार में कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद जिसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है, बहुत प्यारा संवाद है। आज थोड़ा सा उसको टेस्ट देकर आपको एपिटाइजर के तौर में अगले वेबिनार में वी विल गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल उपनिषद। मगर इसलिए मैं आई विल लाइक टू स्टार्ट विद कठोपनिषद बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू भगवत गीता, और कुछ तो मंत्र ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो बिल्कुल वैसे ही कठोपनिषद में है, जिससे ये जाहिर होता है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते भी हैं कि ये नया नॉलेज नहीं है, उन्होंने गीता को गाया है, बनाया नहीं है। गीता तो नित्य है, प्रभु ने आह्लादित होकर उसको अपने मुखारविंद से गाया है, ये समझना पड़ेगा हमें। तो इसलिए गीता में हमें एक ऐसे विद्वान से मिलने का मौका मिला जिन्होंने हमें ये कहा कि भगवत गीता में कोई ऐसा श्लोक नहीं है 700 में से जिसका रेफरेंस वेदों में ना मिल सके। तो पूरी तरह से इंटरलॉक्ड सिस्टम है, इंटरलॉक्ड, मनगढ़ंत बात कुछ नहीं है। देखिए ये एक नजरिया आपको मिल जाएगा, आपको इन क्लासों से और मिले ना मिले, ये अलग बात है कि मंजिल को हम ना पहुंच सके, यही क्या कम है कि रस्तों को छान बैठे हैं। रस्तों को छान बैठने की आपको नजर मिल जाएगी, इससे आपको पता लग जाएगा कि फला आदमी कहां से बोल रहा है, कि वेदर दैट पर्सन इज ट्राइंग टू स्नो यू, और वो 3 के 13 कर रहा है कि वाकई कोई बाकी ठीक अच्छी बात कर रहा है। ये एक नुक्ता है निगाह आपको मिल जाएगी। ये अलग बात है कि मंजिल तक हम पहुंच सके, यही क्या कम है कि रस्तों को छान बैठे हैं। रस्तों को छानना बड़ी बात है, उम्र लग जाती है रस्तों को छानने के लिए। तो ये कठोपनिषद के श्लोक जो हैं, मंत्र और भगवत गीता के श्लोकों का समन्वय पेश किया जाएगा। तो आज 3 श्लोक भगवत गीता के, छोटी छोटी बातें, और एक कठोपनिषद का श्लोक, और थोड़ा सा कठोपनिषद में होता क्या है, ताकि अगले वेबिनार के लिए थोड़ा सा भूमिका तैयार, पृष्ठभूमि तैयार कीजिए। और हमने बड़े धीरे धीरे उतरना है इस सब्जेक्ट में, जल्दी नहीं करनी, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। चलो जल्दी करनी है मगर जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी भी चलो कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। बड़े धीरे धीरे पग, हौले हौले पग रखना है, धरे पग हौले, धरे पग हौले, ऐसे करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचित 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऐसा भी संतों ने कहा है, हरि का बिलोवना बिलोवो मोरे भाई, कि हरि का, वो जैसे हमारी माताएं बिलोती हैं ना दही को, रिड़कती हैं उनको ऐसे करके, उसको बिलोवना कहते हैं। तो संत कह रहे हैं मेरे दोस्त, तू तो संसार का बिलोवना बिलो रहा है, वो तो पानी में मधानी डालने वाली बात है, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। वो कह रहे हैं हरि का बिलोवना बिलोवो मोरे भाई, सहज बिलोवो तत न जाई। क्योंकि जब वो मक्खन ऊपर आ जाता है ना, और आप तेज तेज उसको बिलोएंगे तो मक्खन बाहर गिर जाएगा। तो संत कह रहे हैं हरि का बिलोवना बिलोवो मोरे भाई, सहज बिलोवो, ताकि तत् न जाई, ताकि उसका जो तत्व है ना, तत्व है, वो बाहर ना गिर जाए।
तो ये विद्या बड़े ध्यान से, बड़े धीरे धीरे, अगर आपको जल्दबाजी और जल्दी है तो अभी इसका मतलब है आपकी राजसी प्रवृत्ति संसार की पूरी नहीं हुई, वो पूरी कर लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं है, जब आपके पास समय आए उस वक्त हम कर लेंगे बात आपसे। मगर ये तो वेबिनार है, शर्मा जी की कितनी कृपा है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कभी भी बाद में भी देखिए। हम कई बार ये समझते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम सारे कितने खुशकिस्मत हैं। अर्जुन को, वो हमारे बड़े प्यारे एक वाइस चांसलर हैं गोयल जी, वो उन्होंने अनुगीता के बारे में एक बार कहा हमें, आज भी बड़े वो प्यार से उन्होंने किया, उनको हमारा नमस्कार है। अर्जुन को तो भगवत गीता एक बार सुनने को मिली थी, और जब उसने कहा प्रभु को कि मुझे दोबारा सुनाओ, प्रभु ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो गीता उस वक्त मैंने योग में स्थित होकर कही थी। हाँ, तूने कहा है तो मैं आज को आपको और सुना देता हूं। तो वहां अनुगीता दोबारा सुनाई गई, मगर गीता रिपीट नहीं कही। मगर हम कितने भाग्यशाली हैं, हम बार बार गीता की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, बार बार संतों के प्रवचन सुन सकते हैं, इतना कुछ है यूट्यूब पर, आप सुन सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। हम अर्जुन से भी ज्यादा भाग्यशाली। अर्जुन को तो गीता एक बार सुनने को मिली थी, हमें तो गीता बार 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 बार। हमारी तो कमाल लॉटरी निकली हुई है। मैं तो ये कई बार समझता हूँ लॉटरी निकल गई है कि अंत ही कोई नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो जितनी बार आप सुनेंगे उसका आनंद ले, फिर रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए, यही नहीं है कि एक बार खत्म हो गया सुन लिया, रिवाइंड करो, बार बार सुनो, जो चीज अच्छी लगी बार बार सुनो, नोट करो, नोट करो। हमें जितने भी टीचर्स के साथ सीखने का मौका मिला, आज ये बात भी हो जाए, उनसे एक बात हमें हमारे दिल में आई कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 टीचर से उनकी एक एक बात हमने रिकॉर्ड की हुई है, एक एक बात, जिन टीचर से मिले एक शब्द जाने की, और पूरे प्यार से अगर ऋषिकेश में गए, एक एक शब्द, जब वो चल रहे थे हमारे साथ गंगा जी के पास जाने के लिए, उस वक्त भी रिकॉर्डर ऑन करके उनके मुंह पर चलते चलते मुनि की रेती में हमेशा ऑन रहता था। तो ये एक है कि पता नहीं किस वक्त ये चीज दोबारा सुनने से कोई गांठ खुल जाए, some knot of the heart may get released, that's the idea। तो इसलिए जो भी आपके पास है उसका लाभ लीजिए, किताब है पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, जो चीज आपके दिल को छू जाए उसको नोट कर लीजिए। ये एक छोटी सी बात है। मैंने एक दिन अपने टीचर से पूछा कि शुड आई हाईलाइट ऑन द बुक, शुड आई हाईलाइट, जैसे आजकल हाईलाइट करते हैं अंडरलाइन। तो उन्होंने मुझे मुस्कुराकर कहा, नो, यू शुड हाईलाइट ऑन योर हार्ट। अपने दिल पर अंडरलाइन करो, किताब पर अंडरलाइन करने से क्या बनेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम भाग्यशाली हैं, वडभागी हैं हम। गुरबानी में आता है वडभागी, हम वडभागी हैं कि हमें हरि का बिलोने को मिल रहा है। और सहज बिलोवो, तो हम बड़ी सहजता से, अगर आपके को जल्दी है तो शायद कोई जल्दी ज्ञान देने वाले लोग भी हैं, आप उनसे ले सकते हैं। मगर यहाँ तो हम खुद साधक हैं, तो हमारे अपनी मंद बुद्धि है, और हम बड़े धीरे धीरे और हौले हौले पग रखेंगे, तो अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे, जैसे हमें बताया गया, प्यार से, दिन ब दिन, 5 साल 7 साल लगातार, पर धीरे 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 कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फिर किसी वक्त बात बन सकती है, किसी वक्त। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जब तक इस दिल में, और एक जगह और बड़ा खतरनाक उनका एक है, बड़ी खतरनाक चीज है, वो कह रहे हैं तुलसी अपने राम को, ये हमें अपने जीजा जी से सुनने को मिला था, हमारे बड़े प्यारे हैं जीजा जी। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, चाहे खुश होकर चाहे गुस्से, खिज के खीज तुलसी अपने राम को, यहां तक छूट दी हुई है, चाहे प्यार से चाहे गुस्से से। वैसे गुस्से से क्यों भजो, मगर छूट दे दी आपको। तुलसी अपने राम को
रीज बजो या खीज, धरती फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। बीज को चाहे सीधा फेंको चाहे उल्टा फेंको मगर वो उग जाएगा। इसलिए तुलसी अपने राम को रीज बजो या खीज, धरती फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तो ऐसा है, जिस प्रकार से भी आप भज सकते हैं, टूटी फूटी जुबान में आप बच्चे याद करते हैं, वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान को जितनी सिंप्लिसिटी होगी हमारे अंदर, जितनी सरल स्वभाव, वो बड़ा पसंद करते हैं। कुटिल स्वभाव मोहे तनिक ना भाई, प्रभु जी कहते हैं कुटिल स्वभाव, वो जो अंदर की कुंठता है, कुटिलता है, उसको ही दूर करना है। प्रभु तो अंदर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा मकसद है इन वेबिनार्स में कि तो भगवत गीता के 3 श्लोकों, मैं इसलिए नंबर बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी नंबर बता दिया कीजिए, तो नंबर भी बता देते हैं। दूसरे अध्याय का 16वां, 2nd चैप्टर 16th एंड 17th श्लोका, और वो पूरे नहीं है, आधे आधे श्लोक जो है रेलेवेंट है आत्मज्ञान के लिए। तो 2nd चैप्टर 16th and 17th श्लोका एंड 7th चैप्टर 7th श्लोका। और कठोपनिषद के तो खैर बहुत मंत्र आएंगे, मगर आज एक ही मंत्र है जिस पर कुछ विचार करने की कोशिश करूंगा मैं, समय की नजाकत को देखते हुए। तो पहले तो उसमें अध्याय 1 वल्ली 3 11वां मंत्र लेंगे। अध्याय 1 वल्ली 3 तीसरे मंत्र से 11 मंत्र तक सारे ही बड़े प्यारे मंत्र हैं, मगर एक मंत्र से थोड़ा सा आपको उसका थोड़ा सा मतलब उसका पता लग जाएगा कि ये क्या है, मगर स्टोरी भी उसकी सुनाई जाएगी। तो 2nd चैप्टर के 16 श्लोक में बहुत प्यारी बात कही है, सत्य की परिभाषा दी गई। तो हमारा मकसद इन टॉक्स का क्या है, इन वेबिनार्स का क्या है? वन एंड ओनली वन, सेल्फ नॉलेज। वो सुकरात की एक बात है, नो दाई सेल्फ। उसमें से दाई शब्द को गिरा देना है। नो सेल्फ, सीधा जान लेना, साक्षात अप्रोक्षात। ये है भारत की खूबसूरती, हिंदुस्तान की खूबसूरती है ये। क्या भारतवर्ष की क्या खूबसूरती है कि वहां तो कहा गया नो दाई सेल्फ, यहां कहा गया है कि नो और सेल्फ में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो दाई का है, योर्स, अपने अहं का है, अहंकार का है, ममकार का है, ममता और अहमता का है। जब आप उसको दूर कर देंगे तो नो और सेल्फ, बल्कि नो भी नहीं रहेगा, सेल्फ ही रह जाएगा, एक ही चीज रह जाएगी, तद एकम जिसे कहा गया है, तद एकम सत्यम जिसे ओम के नाम से कहा गया, वो ही रह जाएगा। ये मकसद है भारतीय संस्कृति का, ये मकसद है इन वेबिनार्स का कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे उस आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है, ताकि हमें पहले क्लैरिटी होगी, स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा, स्पष्ट। I once asked my teacher, I said, isn't Atmagyan doesn't it mean knowing yourself with clarity? He said yes. आमतौर पर मैं जो भी पूछता हूँ वो ना कर देते हैं, वो कहते हैं नो यू आर रॉन्ग, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सुधार रहे हैं, बुरा नहीं लगता। यही तो खूबसूरती है कि वो जब सुधारते हैं अच्छा लगता है। तो कभी कभी 100 में से एक बार कह देते हैं ठीक है, तो वो मुझे अच्छा लगा, चलो वो भी अच्छा लगा। तो स्पष्टता से अपने स्वरूप का ज्ञान आत्मज्ञान है। तो क्लैरिटी से सर्टिट्यूड आएगा। ये बड़े खूबसूरत शब्द हैं, थ्रेडबेयर। वो मुझे कहते थे ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर मीनिंग बिल्कुल साफ और बिल्कुल थ्रेडबेयर, यानी कि धागे, कपड़ा नहीं, कपड़े के धागे के भी रेशों तक चले जाइए आप, दिल तो क्या रूह में उतर गए होते, ऐसा है। तो ये जो रेशों तक थ्रेडबेयर जाना है, वो उसमें भगवत गीता में सत्य की परिभाषा 2nd चैप्टर 16 श्लोक के शुरू में दी गई है। पूर्वार्ध भाग में क्या कहा गया है? ना सतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता। बड़ा सिंपल श्लोक है ये।
ना असतो विद्यते भावो, असत्य का कभी भाव नहीं होता। जो एनीथिंग विच इज अनट्रू हैज नो एग्जिस्टेंस, हैज नो बीइंग। ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। देखिए कितनी खूबसूरत डेफिनेशन भगवत गीता दे रही है। और फिर अगले अध्याय में भी अभी भगवान जो उनको लगा लोहा गर्म है, अर्जुन का लोहा गर्म है, एक और स्ट्राइक कर दो। और अभी वो रिकवर हुआ ही था इससे अर्जुन, और अगले में कह दिया अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम, के यहां पर जो सारा सारा ब्रह्मांड जिससे ओत प्रोत है उसको तू अविनाशी जान। अविनाशी तू तत्विधि, जानो इसे ऐसे, येन सर्वम इदम ततम, यहां जो सारी दुनिया में वो तत्व छाया हुआ है उसको जान लो, वो अविनाशी है। वो स्पेस जो है, जो अंदर भी था कप के और बाहर भी है, उसकी हकीकत को जान लो, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। जब कप को ये पता लग जाएगा कि मैं सीमित स्पेस नहीं हूं, मैं तो अनंत हूं, और अनंत की डेफिनेशन ही ये है कि उसका अंत नहीं हो सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म है उसकी परिभाषा तैत्तिरीय उपनिषद में दी है। ऐसी परिभाषा दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, बल्कि भारत के किसी ग्रंथ में मिलेगी आपको। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म जो है, आत्मा को ब्रह्म के तौर पर जानना है और ब्रह्म को आत्मा के तौर ऐक्य देखना है। ब्रह्म आत्मा ऐक्य बिना मुक्ति मोक्ष सिद्ध थी ना अन्यथा, उसके बगैर मोक्ष हो ही नहीं सकता। विवेक चूड़ामणि में कहा गया, जब तक आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध ना हो जाए, इस तरह से एक ही चीज है, पता ना लग जाए आदमी को, मोक्ष सिद्ध थी, मोक्ष की सिद्धि हो ही नहीं सकती। ब्रह्म शतांतरे अपि, ब्रह्म का एक दिन ही पता नहीं कितना बड़ा होता है, उसके शतांतरे अपि 100 उसके युग बीत जाए ब्रह्म के इतने बड़े, फिर भी मुक्ति नहीं होगी। कब तक? जब तक आत्मा को ब्रह्म के रूप में आदमी नहीं जान लेगा। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है सत्यम, वो सत्य है, उसकी डेफिनेशन भगवत गीता दे रही है। देखिए उपनिषद का गीता के साथ मेल समन्वय कर दिया। डेफिनेशन क्या है? ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सता। ना असतो विद्यते भावो, जो असत है उसका भाव नहीं है, असत कभी होता ही नहीं है, उसको आप वो पकड़ ही नहीं सकते आप। संसार असत्य है। असत्य कैसे? आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं? आई कैन सी इट, आई एक्सपीरियंस इट, इट्स रियल। संसार इस तरह से सत्य नहीं है। संसार इस तरह से सत्य है कि जो आपको नजर आ रहा है वैसा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, वो सत्य से सत्य नहीं है, सत्य का सत्य नहीं है। सत्य जरूर है, सत्य से सत्य, दैट इज नॉट द ट्रूथ ऑफ द ट्रूथ, द रियल ऑफ द रियल। क्यों? क्योंकि संसार का एग्जिस्टेंस आपके होने पर डिपेंड करता है। हमारी नजर पड़ने से नजर आते नजारे हैं। अगर आपकी नजर नहीं पड़ेगी, नजारे नजर नहीं आएंगे। नजरें बदलेंगी, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। यही काम करना है इन वेबिनार के जरिए, नजर को बदलना है, पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, और कुछ नहीं करना। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। ये जो घूंघट के पट हैं, ये जो आंखों के ऊपर घूंघट पड़ा हुआ है अज्ञान का, उसके पटों को, उसके परतों को खोलना है तो है पिया मिलेंगे। तो तब पिया के दर्शन, खोल ले पलक पाले झलक, कबीर साहब कहते हैं। तो ये है झलक पाने की बात। उससे क्या है कि उसको सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो तिराकाल अबाधित हो, तीनों कालों में जिसको बाधित ना किया जा सके। सत्य पास्ट में भी सत्य होता है, प्रेजेंट में भी सत्य होता है, फ्यूचर में भी सत्य होता है। वो डेफिनेशन है सत्य की। तो वो कह रहे हैं, सत्य का प्रभु कहते हैं कभी अभाव होता ही नहीं। तो जब आप अपने सत्य को जान लोगे, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, उसका कभी अभाव होगा ही नहीं, गारंटी दी है शुरू में। और फिर कहा है आगे चल के कि अविनाशी तू तत्विधि, वो चीज अविनाशी है जिस चीज को हम सब पार, इसीलिए संसार में
हमें कभी पूर्णता खुशी नहीं मिलती। क्यों? वो अविनाशी नहीं है। संसार तो नाशी है, हमें नजर आ रहा है, हर चीज नजर आ रही है, दिन ब दिन नजर आ रही है। हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, सबका शरीर बूढ़ा हो रहा है। मृत्यु जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से शुरू हो जाती है, उसकी परिसमाप्ति डेथ वाले डे पर होती है। मगर इसमें ये समझने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं कि ये नहीं कि वो एक दिन आया मृत्यु का, ना ना ना। आपको याद होगा परीक्षित की स्टोरी बड़ी प्यारी है श्रीमद् भागवतम में। परीक्षित राजा थे, बड़े 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 कमाल के राजा थे। उन जैसा उनका जो इतना प्यारा वंश था, जिसके दादा अर्जुन हो और जिसके आगे फिर सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। तो परीक्षित को भगवान ने बचाया था गर्भ के अंदर जाकर, रोशनी देकर। और परीक्षित को रोशनी इतनी अच्छी लगी प्रभु की, वो ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए प्रभु आ गए थे। कुछ बार इन महाभारत लॉर्ड कृष्णा हैज इंटरफियर्ड, दिस इज वन ऑफ देम। और परीक्षित जो था, उसको लाइट प्रभु की अंदर जो नजर आई थी माता के गर्भ में, जो बचाने के लिए प्रभु की लाइट आई थी, वो इतनी प्यारी लगी कि वो बाहर आकर भी ढूंढ रहा है, परीक्षा कर रहा है, इसलिए उसका नाम परीक्षित था। तो वो he was once going for hunting, I think, and प्यास लगी, so he felt thirsty and he went to a nearby hut. वहां पर एक ब्राह्मण ध्यान कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। वो चिंतन में मगन थे and he kept on doing his जो भी वो ध्यान या जप and everything, whatever he was doing. तो परीक्षित को थोड़ा गुस्सा आ गया। राजा था, वो कहता है मुझे पता नहीं राजा आया। तो वो बाहर गया और वहां पर कोई मरा हुआ सांप था। सो ही पिक्ड इट अप विद दी, अपने तीर की नोक से उसे उठाया और आकर उसके झोंपड़ी में जो बैठा हुआ था आदमी, उसके गले में डाल दिया, पुट इट अराउंड हिज नेक, मरा हुआ सांप। आफ्टर सम टाइम द सन ऑफ दैट ऋषि और पंडित, जो भी कहना चाहते हैं आप, वो बाहर खेल रहा था। ही केम बैक, उसने देखा कि ये मेरे पिताजी के गले में सांप कौन डाल गया। एंड ही सा कि यहाँ राजा परीक्षित आए थे। उसको लगा कि राजा परीक्षित ने ऐसा किया मेरे फादर के साथ, इंसल्ट किया मेरे फादर को। वो ब्राह्मण लड़का बाहर गया और श्राप दे दिया उसको, राजा को श्राप दे दिया कि जैसे तूने आज मेरे फादर के गले में यू हैव पुट द डेड स्नेक, आफ्टर 7 days from now you will be bitten by a very venomous full snake called तक्ष। आपको तक्ष नाक काट लेगा आके 7 दिन के बाद। तो परीक्षित समझदार थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि उस बच्चे को सजा दो, उन्होंने कहा कि चलो मेरा काम हो गया है, अब 7 दिन। देखिए यहां पर चीजें प्रतीक हैं सारी। 7 दिन का मतलब क्या है? उनको तो लग गया 7 दिन में डेथ हो जाएगी। सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होती है। जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, उसमें किसी न किसी दिन मृत्यु होनी है। तो सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ स्टोरी का ये है। और एक मीनिंग ये भी है कि उन्होंने जाकर शुकदेव जी से, जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, उनसे फिर श्रीमद् भागवत सीखा। और इन 7 days उन्होंने ये कहा उसको, परीक्षित को, राजन तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो। क्लियर शब्द लिखा हुआ है उसमें, पशु बुद्धि। क्या पशु बुद्धि? कि मैं मर जाऊंगा, कि तू शरीर है। इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। और उनको उन्होंने उसके स्वरूप में 7 के बाद नाग आया, उसको काटा तो शरीर का नाश हुआ। मगर वो तो अविनाशी तत्व के साथ एक हो चुके थे शुकदेव जी के ज्ञान से। तो वो ज्ञान प्राप्त करना है 7 दिनों के पहले। मगर हमारे पास तो वो 7 दिन भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए उनके पास तो 7 दिन थे लिटरली, तो हमारे पास 7 दिन नहीं है। तो वो अविनाशी पद जो है, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अविनाशी तू तत्विधि येन सर्वम इदम ततम। तो ये है दूसरे अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक के थोड़े हिस्से। और 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बड़ी प्यारी बात भगवान कृष्ण कहते हैं। तो तीसरा श्लोक है, वो उसको कहते हैं अर्जुन को कि मत परम तरम न अन्यद किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ नहीं है। देखिए क्या बात हो रही है।
पुरुषोत्तम अपने आप को, वहां भगवान कृष्ण अपने आप को शरीरधारी के रूप में नहीं बोल रहे, वो अपने को जहां जहां भी प्रभु बोले हैं माम शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं शब्द का इस्तेमाल किया है, वो पर ब्रह्म में स्थित होकर प्रभु ने कहा है। वो करे हैं मतः परतरम अन्यद न किंचित अस्ति, मेरे से परे कुछ नहीं है। कठोपनिषद में भी आता है कि परतः परा पुरुष, वो पुरुषाना परा किंचित, बिल्कुल वही बात आ रही है। वहां पर ऋषि कह रहा है कि जो पुरुष है, आदि पुरुष है, पुरुषा न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति, ये पराकाष्ठा है ये ज्ञान की, पुरुष को पा लेना, उस पुरुष को पाना है जिसके बारे में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से परे कुछ है ही नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय, और मैं ही इस सारे संसार में, जैसे मैंने ओतप्रोत शब्द इस्तेमाल किया था, मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय, मैं ही इस सारे संसार में, जैसे एक सूत्र में मणिये, वो मन के गिण दिए, जड़ दिए जाते हैं, मेरे में सारा संसार, मेरे 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 रूपी धागे में, सर्वाधिष्ठान में वो सूत्र मणिगणा एव कहा, एव मैंने एज इफ लाइक द बीड्स, मणिगणा एव सूत्र, वो मैं सूत्र हूं जिसमें सारी दुनिया की माला प्रोई हुई है, मेरे से परे कुछ नहीं है, मेरे को जान लो। तो अब नाउ व्हेन वी कम टू नो दैट वो जो अविनाशी तत्व है वो प्रभु हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूं। देखिए, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, 13वें अध्याय का 27 श्लोक। 13th चैप्टर कम्स आफ्टर भक्ति योग। तो भक्ति योग के बाद ज्ञान योग का मतलब क्या हुआ कि भक्ति योग के बाद 11वें अध्याय में अपना स्वरूप दिखाने के बाद भी प्रभु ने भक्ति योग की बात की, और भक्ति योग के बाद ज्ञान की बात की, यानी कि साधक बनने के लिए जिज्ञासु भक्त बनना पड़ेगा। भक्त तो 12 अध्याय में पूरा हो गया, मगर जिज्ञासु बनना पड़ेगा, फिर 13वां अध्याय का ज्ञान हमें मिलेगा, जहां प्रभु कहते हैं, ये हमारे टीचर हमें कहा करते हैं कि एक ही श्लोक काफी है भगवत गीता का, और वो ये है 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। कुछ गीता के संस्करणों में 28वां है, क्योंकि उसमें एक अर्जुन के तरफ से श्लोक जोड़ दिया जाता है। 13वां अध्याय भगवान अपनी तरफ से शुरू करते हैं, वो ठीक है, शंकराचार्य की बात हम मानते हैं, वो सब मानते हैं। तो वहां है समम मैंने एक जैसा, ये नहीं है कि मेरे में डिफरेंट है, शर्मा जी में डिफरेंट है और किसी और में डिफरेंट है, बिल्कुल वो ऐसा चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म के फील्ड में आपसे बेहतर मानता है कि मैं पहुंच गया हूं और आप नहीं पहुंचे, तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अभी बात बनी नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी मजाक की बात बताता हूं कि एक बार हम कहीं गए किसी पार्टी में मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को पता लग जाएगा। तो किसी ने कह दिया कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वो पूछा गया कि आप पहुंचे हुए हैं? हमने कहा जी हाँ बिल्कुल हैं। वो कहता है वो कैसे? मैं तो कही जहां कहो वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह से पहुंचे हुए हैं। तो वो भी एक तरह के पहुंचे हुए लोग होते हैं, जहां कहो वहां वो पहुंच जाते हैं। तो कई किस्में हैं पहुंचे हुए। कहते आप पहुंचे हो? मैं कही बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। कहते वो कैसे? मैं कहा जहां कहो वहां पहुंच जाते हैं, इस तरह से पहुंचे हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आपसे बेहतर कह रहा है तो वो गीता संगत बात नहीं है। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं समम, सम मैंने एक समता से, सर्वेशु सब में, भूतेषु मैंने सभी प्राणियों में, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, जानवरों में, कीट पतंगों में, वृक्षों में, सारी चीजों में, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वो जो परमेश्वर है वो सब भूत प्राणियों में एक रस एक रूप में स्थित है। तो वो जो परतः परा पुरुष है, वो पुरुषोत्तम है, वो हम सब में एक जैसे हैं, कोई बेहतर नहीं है, कोई न 10 से 12 जियो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई है ही नहीं बाहर का व्यक्ति,
निज प्रभु महि देखहि जगत, ये अपने तुलसीदास जी कहते हैं, निज प्रभु महि देखहि जगत कासन करत विरोध। जब मैं सारे जगत को प्रभु में अपने अंदर देखता हूं तो मैं किसके साथ विरोध करूं, किसको क्रिटिसाइज करूं, किसके साथ मैं अपनी मेरी मेरी अपोजिशन हो। तो ये एक आंख देती है भगवत गीता। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। और आगे चल के कहा, फिर वही बात आ रही है, विनश्यस्व विनश्यस्व अविनश्यंतम। विनाशी में अविनाशी को या पश्यति सा पश्यति। जो ऐसे देख लेता है, कैसे? ये संसार जो विनाशी है, इसके आधार में, मूल में कोई ऐसा तत्व है जिसके बारे में कहा गया है, अविनाशी तू तत्वदि येन सर्वमिदं ततम। वो तत्व है, उसको जानो। या पश्यति सा पश्यति। जो ऐसे देख लेता है, क्या देखता है? एक प्रभु सब में एक से एक समान, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, बैठे हुए हैं, डेरा लगाकर, धरना लगाकर बैठे हुए हैं। नजर किसको आते हैं? विनश्यस्व, जो विनाशी चीजों में, a person who is able to see the imperishable element within the perishable। यही बात बृहद अरण्यक उपनिषद में आई है, यही बात। एतद अक्षरम अविदित्वा सह कृपणा। जो व्यक्ति यहां पर आकर उस अक्षर, अविनाशी अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, अक्षर, एतद यहां अक्षरम अविदित्वा, जिसको जानता नहीं है, सह कृपणा, वो बेचारा है, कृपण है वो बेचारा है, उसके बारे में और कोई बेचारा नहीं। जिसने इस जीवन को प्राप्त करके, इस शरीर को, नाशी शरीर को प्राप्त करके, इसमें अविनाशी को नहीं ढूंढा, वो फिर चूक गया, काम चूक गया। फिर तो मुश्किल है, पासा पड़े ना पड़े। संतों ने कहा है कि 1,84 घूम के पौ पटकी आए, अब के पासा ना पड़े फिर 84 जाए। वो जो शतरंज का पासा है, वो इस बार अगर ना पड़ा तो फिर वहां फिर जाना पड़ेगा, उस लाइन में खड़े होना पड़ेगा। इसलिए ठीक कर लेना चाहिए काम संतों के हिसाब से। जग से रुए तो 36, रामचरण 36, उसकी कीमिया बताई गई कि वो जो विनश्यस्व अविनश्यंतम, विनाशकारी चीजों में अविनाशी को ढूंढो, देखो, नजर आपकी वहां होनी चाहिए। वो कोई एक व्यक्ति किसी की ओर देख रहा था, तो उस स्त्री ने कहा, औरों की सूरत, वो शायर मिजाज की थी, तो उसने कहा, वो देख रहा था उसकी तरफ, उसके चेहरे की तरफ, तो उसने कहा, जो औरों की सूरत पे होते हैं शैदा, जिंदगी में वो रंजो गम देखते हैं। कि जो दूसरों की शक्लो सूरत पर फिदा हो जाते हैं, वो जिंदगी में हमेशा रंजो गम देखते हैं। अब वो व्यक्ति जो देख रहा था, वो भी कुछ शायराना मिजाज का था। ये हमने संतों से सुनी हुई चीजें हैं। स्वामी शरणानंद महाराज जी की वाणी में आता है। ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं आपको सुना रहे, शायरी ऑर्डिनरी नहीं है। हर चीज का मतलब उधर लगता है, अगर आपके पास वो आंख हो, पारखी आंख हो। तो औरों की सूरत पे होते हैं शैदा, वो दुनिया में रंजो गम देखते हैं, ये कहा उस औरत ने। तो आदमी ने जवाब दिया, ना तुझसे है मतलब, ना सूरत से तेरी, हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं, हम तो बनाने वाले की कलम के फिदा हैं जिन्होंने आपको बनाया है। ना तुझसे है मतलब, ना सूरत से तेरी। मतलब कहने का ये है कि ना तुझसे है मतलब, ना सूरत से तेरी, हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं, बनाने वाली कलम की तरफ हमारा ध्यान है। हुजूर, आप अपने आप को इतना ना इंपॉर्टेंस दीजिए। वो जो उधर बैठे हैं और उनके भी जो आगे बैठे हैं, उनसे जाके कह दीजिए लोग उनसे भी परे बैठे हैं। ये है अगर किसी को अभिमान हो। परा से परा लोग बैठे हुए हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, बड़ा विस्तार है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो सितारों से अंत ही नहीं है किसी चीज का, ये तो अंत नहीं है इस चीज का। तो ये जो नजर है कि हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं, कि उस विनाशी चीज में जो अविनाशी तत्व है, उसको जानना,
भगवद गीता जी देती है। परतः परा पुरुष, ये कठोपनिषद का फर्स्ट चैप्टर के 3rd वल्ली का 13th श्लोक है, जिसमें आता है कि पुरुषानः परा किंचित सा काष्ठा सा परागति, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आज समय ज्यादा हो गया, हम कुछ लेट शुरू हुए थे। हमारा मकसद सिर्फ एक है। शर्मा जी आज एक और छोटा सा सूत्र देकर बात अपनी पूरी वाणी को विराम देंगे, और वो छोटा सूत्र क्या है? ये है मकसद हमारी जिंदगी का। और मकसद रहे होंगे लोगों के, हमारा मकसद सिर्फ इतना छोटा सा मकसद है। तो आप अगर नोट कर लेंगे तो शायद इससे बात बन जाए, और वो ये है कि जैसी पाई दुनिया हमने, जैसी पाई दुनिया हमने, आओ इससे बेहतर छोड़ें, आओ इससे बेहतर छोड़ें। बस और कुछ नहीं करना। जो दुनिया, जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, छोड़ने वक्त थोड़ा सा इससे बेहतर करके जाएं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? 100 साल से, हजारों साल से, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए हजारों साल से गो है आदमी का वजूद। आदमी जो है, जो मैन काइंड और ह्यूमन काइंड जो है, वो तो हजारों साल से चली आ रही है। हजारों साल से गो है आदमी का वजूद, निगाह आज भी तरसती है एक इंसान के लिए। बस एक इंसान बनना है, फरिश्ता से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। बढ़ाओ ना मिलत की। वो कहते हैं कि तकल्लुफ अलामत है बेगानगी की, नहीं अच्छा हद से तकल्लुफ ज्यादा। तो ये जो फरिश्ता से बेहतर है इंसान बनना, ये अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है। उनकी पोइम का, गजल का कुछ कते याद आ रहे हैं कि बढ़ाओ ना आपस मिलत ज्यादा, मुबादा के हो जाए नफर ज्यादा, तकल्लुफ अलामत है बेगानगी की, नहीं अच्छा हद से तकल्लुफ ज्यादा, फिर औरों की तकते फिरोगे सखावत, डालो ना सखावत की आदत ज्यादा। फरिश्ता से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो इसमें जो मेहनत पड़ती है फरिश्ते से ज्यादा इंसान बनने में, वो काम करना है, और वो पर्पस है भगवद गीता के सारा और उपनिषदों की सारी बात का। तो आज इतना ही कहकर हम, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पूरा, अगर आपने कुछ कहना है तो कहिए, मगर मेरे सर से तो पूरी बात ओके। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं जी अगले रविवार को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप विश्राम कीजिए एंड शुभ रात्रि। धन्यवाद, थैंक यू सर। क्योंकि आपके कहने के बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता।